Hello class 4. Today in geography we will start a new chapter, States in the Western Coastal Plains. Please open page number 88. The states of Kerala, Karnataka, Goa and Maharashtra lie in the Western Coastal Plains. So first we have to know which states do lie in the Western Coastal Plain. The states of Kerala, Karnataka, Goa and Maharashtra. These four states do lie in the Western Coastal Plains. Today our topic of discussion is Kerala. So let's start. Kerala lies in the extreme south of the west coast. To its north lies Karnataka and to its east lies Tamil Nadu. The Arabian Sea and the Indian Ocean wash the coasts of Kerala. So क्या बोल रहे हैं कि केरला एकदम इंडिया के एकदम साउदर्न मोस्ट पार्ट में सिचुएटेड है एंड इसके ईस्ट में है तमिलनाडु एंड इसके नॉर्थ में है कर्नाटका एंड अरेबियन सी और इंडियन ओशन इसके कोस्ट्स को वॉश करते हैं. मतलब इस देयर इज़ अ कोस्टल प्लेन इन केरला विच इज़ बेसिकली अ मीटिंग पॉइंट ऑफ अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन. Thiruvananthapuram is the capital of Kerala. Kottayam, Alappuzha, Kochi, Ernakulam and Kozhikode are some important cities. तो क्या बोल रहा है कि कैपिटल क्या है केरला का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम. अपार्ट फ्रॉम दिस कैपिटल देयर आर सम फेमस सिटीज लाइक कोट्टायम, अलाप्पुझा, कोची, एर्नाकुलम एंड कोझिकोड. Now we have to know about the physical features of this state. Basically, geographically, Kerala can be divided into three regions: the eastern highlands, the central midlands and the western lowlands. Okay, now we have to know some interesting geographical features of Kerala. First, to the east of the state lie the hills of the Western Ghats running in a north to south direction. केरला के ईस्ट में वेस्टर्न घाट्स जो हिल है वो सिचुएटेड है एंड इट रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. सेकेंड इज केरला हैज़ अबाउट 44 रिवर्स: पेरियर, भरतपुझा, पंबा, चेलियर एंड चलाकुडी आर सम रिवर्स ऑफ दिस स्टेट. तो केरला में टोटल 44 रिवर्स है जिसमें से 4-5 रिवर्स बहुत फेमस है जैसे पेरियर, भरतपुझा, पंबा, चलियर एंड चलाकुडी. थर्ड, two famous hills of this state are Anaimalai Hills and Cardamom Hills. Fourth, the eastern and western Ghats meet at Nilgiri Hills. केरला में ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स दो हिल्स एक साथ मीट करते हैं, ज्वाइन करते हैं एंड देयर ज्वाइनिंग पॉइंट इज नोन एज नीलगिरी हिल्स. नाउ वी हैव टू नो दैट व्हाट इज Malabar कोस्ट. द कोस्टल रीजन ऑफ केरला इज ऑल्सो नोन एज Malabar कोस्ट. मतलब बोल रहा है कि ये केरला का जो ये कोस्टल एरियाज है दिस एरिया इज नोन एज Malabar कोस्ट. One of the most striking feature of Kerala is its backwaters and one of the famous example of this backwater in Kerala is the Lake Vembanad, which is the Kerala's largest lake and is also located in these backwaters. Climate. Since the state lies in the tropical regions, it has a hot and wet climate. क्योंकि ये जो स्टेट है मतलब केरला ये पूरा ट्रॉपिकल रीजन में सिचुएटेड है इसीलिए यहाँ पे हॉट एंड वेट क्लाइमेट है. However, the eastern areas have dry tropical climate, that is it is hot in summer and cold in winter. इसके जो ईस्टर्न एरियाज़ है वहाँ पे ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है. नॉर्मली केरला में क्या होता है कि मतलब ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या होता है कि समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है और विंटर में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. केरला रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून. मानसून के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है. ऑन एन एवरेज इट रेन्स फॉर 120 to 140 डेज अ ईयर. एक साल में 120 से 140 दिन तक यहाँ पे बारिश होता है. ड्यू टू हेवी रेन्स देयर आर एट टाइम्स साइक्लोन्स दैट कम इन फ्रॉम द Indian Ocean. On an average, the temperature varies between 37 degrees centigrade to 20 degrees centigrade. Due to rainfall मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे बारिश होता है कि कभी कभी यहाँ पे साइक्लोन्स भी आते हैं इंडियन ओशन से. एंड ऑन एन एवरेज टेम्पर यहाँ पे रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड.
Next, vegetation and agriculture. The natural vegetation of the eastern part of the state consists of thick forests. The people of Kerala grow important food and cash crops. In some parts of the state, there are rubber, coffee, tea and cardamom plantations or estates. तो क्या बोल रहे हो, नेचुरल वेजिटेशन इसके ईस्टर्न पार्ट में मतलब थिक फॉरेस्ट है. केरला का जो ईस्टर्न पार्ट्स है वहाँ पे थिक फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं. एंड द पीपल ऑफ केरला ग्रो इन इम्पॉर्टेंट फूड एंड कैश क्रॉप्स. यहाँ पे नॉर्मली इंपॉर्टेंट फूड्स एंड कैश क्रॉप्स सबसे ज़्यादा कल्टिवेटेड होते हैं, जैसे रबर, कॉफ़ी, टी एंड कार्डमम प्लांटेशंस या एस्टेट्स यहाँ पे देखने को मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, जिंजर is also cultivated here. Fruit trees, spices like cardamoms and black pepper are also grown. Another crop of the hill slopes is tapioca. Ginger, cardamom, ब्लैक पेपर, ये सब कुछ यहाँ पे जैसे कल्टिवेट होता है. उसके साथ साथ यहाँ पे और एक चीज़ भी कल्टिवेट होता है, विच इज़ नोन एज tapioca. In the central and coastal plains, there are miles of paddy fields and coconut trees. सेंट्रल एंड कोस्टल प्लेन्स में बहुत जगह पे पेडी एंड कोकोनट ट्रीज देखने को मिलते हैं. सो क्लास 4, प्लीज़ गो थ्रू दिस टेक्स्ट अलॉन्ग विद दिस एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.